So, VRS Two-Wheeler Technology Private Limited has a successful track record in the field of academic research, training, recruitment, and job assistance since its inspection in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. Venus Two-Wheeler Technology emphasize academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Two-wheeler technology bridges the gap between employer and employee via industry, product specific selection, and pre-employment training. Just for a quick look, I'm just sharing my screen and showing you all the unique services which Two-wheeler Private Limited helps. So we are Two-wheeler Technology Private Limited. We have internship, which is student intern. We provide training and internship in this. And for resume builder, we have Resume Motion. And for education and college searching, universities, colleges, schools, play schools near your location, we have Vidyapun. And for the research and development, we have Anushram. And for psychometric test, we have Sudakshita as our services. And for training, we have Prayo. For the job research, we have Navrojan, and all these are the all services we provide in Stuvely Technology Private Limited. And we have workshop today for the topic which is on page SEO. So let's start with that. So I'll hand over to Sampriti ma'am. Please continue, ma'am. Thank you so much, Sita ma'am. Hello students, I'm Sampriti Roy. I'm your digital marketing instructor for the day. We'll be studying SEO for today's session. In SEO, we'll be covering on-page SEO. I'll be sharing my screen and we'll go over the concepts of on-page SEO. Sita ma'am, could you please give me the permission to share my screen? One second, ma'am. Sure. Please check, ma'am, if you can Yes, share your screen now. Thank you so much. Yes, ma'am, I will listen. In this masterclass for on-page SEO, we'll be covering few topics, which is first we'll see what exactly is SEO when we're talking about search engine optimization. There are many types of SEO. We'll see what are those types of search engine optimization. Then we'll see the term keywords that we are going to hear multiple times when we are working with any type of SEO. We are going to perform how to do keyword research practically. We'll see how to place these keywords, where to place these keywords. We'll also cover brief introduction on SEO content writing. So there is a difference between content writing and SEO content writing. Then we'll see after completion and creation of the page, how do we submit that page on Google. Right. So meanwhile, I just need students to be interactive with this session and raise your hands if you have ever heard about the term search engine optimization. And if you have ever worked on it. Okay, I see one student. Okay. I see a few students who have worked already in SEO optimization. So that's amazing. We'll start with the practical implementation soon after this brief introduction. We are going to cover few tools. Students, you can lower your hands. It's fine. Thank you. We are going to study Google AdWords. This is the tool that we'll be using for keyword research. So there are many tools available online. But for this session, we are going to use Google AdWords. I personally recommend these tools, not just because it is free, because once you start creating the pages, you want those pages to rank on Google search engines, right? So on the Google search engine, you can rank on the keywords exactly which users are searching it on Google. So what better tool can you find rather than Google's own tool itself? So Google AdWords is a tool by Google.
which has its own database, right? And then from that its own database, it will show you the user behavior and it will give you the best keywords possible. Then we are going to collect our keywords. We are going to create the page on WordPress website development Sampriti software. ma'am, sorry to interrupt. Can you please be bilingual, like you can use Hindi and English both? Sure. I was Yeah. not informed about it. I can train in English. Yeah, Thank you so much, ma'am. You have to use both of the language, like Hindi and English, because students are comfortable in both of them only. Okay. All right. Okay. All right. Thank you. Thank you so much. So I'll start it again. तो गूगल एडवर्ड्स जो है इस टूल में हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि गूगल एडवर्ड्स वाला जो टूल है इसमें एक सेक्शन रहता है जहां पे आप कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करने का बेस्ट टूल ये क्यों रहता है? बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको, SEMrush मिल जाएगा, आपको Ahrefs मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स है, वो प्रीमियम टूल्स भी है ऑफ कोर्स। बट गूगल एडवर्ड्स का टूल सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि गूगल में लोग ऑलरेडी सर्च करें। गूगल इज द सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, राइट? वो एक सर्च इंजन है, वहां पे लोग सर्च कर रहे हैं। गूगल के पास खुद का डेटाबेस है कि वहां पे कौन से टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं। उनके डेटाबेस से जब आपको वेल मोस्ट हाईली सर्च कीवर्ड्स मिलते हैं, आप उन कीवर्ड्स का यूज करोगे अपने पेज को क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट हम जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में हम लोग सीखेंगे पेजेस कैसे डिजाइन करते हैं। हम लोग लाइव एक पेज क्रिएशन सीखेंगे। पेज क्रिएशन में जो ऑन पेज एसईओ है उसके लिए एक टूल का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योस्ट एसईओ। योस्ट ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है फॉर वर्डप्रेस। एंड आफ्टर दैट वी स्टडी ग्रामरली। सबसे पहला तो है कि आप लोग मुझे बताएं चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? चैट बॉक्स का यूज करें और बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का? आई एम चेकिंग द चैट बॉक्स, बताएं आप लोगों को क्या लगता है। गूगल करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले हैं। To search something with the help of keywords. Yeah, that is called browsing, do Vikas? किसी वेबसाइट को सर्च करना, किसी वेबसाइट को सर्च करना उसको ब्राउज करना बोलते हैं। इंटरनेट पे हम सर्फ करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, इसको कहा जाता है सर्च करना। या करेक्ट, ऑप्टिमाइजिंग अवर कीवर्ड्स एंड कंटेंट, करेक्ट। रैंकिंग हायर इन सर्च इंजन, राइट। मेक अवर वेबसाइट विजिबल टू पीपल, नाइस आस्था। मैम बोल के भी बता सकते हैं या केवल सिर्फ कमेंट से चैट लिखना बॉक्स का यूज करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग सब एक साथ बात करने लग जाओगे तो मेरी बात कौन सुनेगा। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करें। है? ठीक है, ओके। अरे आप गूगल करके क्यों बता रहे हो? आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बताओ। राइट, ऑलराइट गाइस। सो आप लोगों को बेसिक आइडिया पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, राइट? नेक्स्ट इज जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इट इज अ साइंस ऑफ रैंकिंग योर वेबसाइट, ठीक है? सही टाइम पे रैंक तो करना है बट सही टाइम पे। ऐसा नहीं कि लोग अपने आसपास के मेडिकल स्टोर्स सर्च कर रहे हो और आपने किसी हॉस्पिटल के ऊपर एसईओ किया है वो रैंक करना स्टार्ट करे, ठीक है? भले ही दोनों मेडिसिन फील्ड से है, राइट? तो सही टाइम पे, द राइट टाइम पे रैंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो वेबसाइट है जब लोग सर्च कर रहे हैं मेडिकल स्टोर नियर मी, कैफेज नियर मी, सैलून नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स नियर मी, ठीक है? जिस टाइम पे इन कीवर्ड्स का यूज किया जा रहा है एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये कीवर्ड्स रैंक, अपना जो वेब पेज है वो रैंक होना चाहिए, ठीक है? गलत टाइम पे अगर रैंक होता है तो कैसा होता है, हम जाते हैं उनके वेबसाइट में,
रिलेवेंट नहीं लगता, ऑब्वियस सी बात है। मुझे दवाइयों का दुकान ढूंढना था, हॉस्पिटल ओपन हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल के वेबसाइट्स ओपन हो रहे हैं, वहां पे वो बुकिंग करने बोल रहा है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है उनके साथ कंसल्ट करने बोल रहा है। मुझे नहीं करना है, मेरा हो चुका है वो कंसल्टेशन, अब मुझे मेडिसिन बाय करना है ऑनलाइन, ठीक है। मुझे ऑनलाइन छोड़िए, अगर मुझे पास के भी स्टोर में जाना है, आप किसी नए शहर में गए हो, आपको नहीं पता है कि आसपास का कौन सा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा वाला है, या फिर पास में कौन सा जहाँ पे सारे मेडिसिन मिल जाते हैं। जब नहीं पता रहता हम सर्च ही करते हैं, सर्च करते हैं, वो आपको फिर से हॉस्पिटल में भेज रहा है, नहीं चाहिए ना हमको। तो इससे बेटर रहता है कि आपको दिखा दिया जाए कि कब आ रहा है कब नहीं, कौन से इसमें जाना है हमको, ठीक है। तो जैसे ही वो बंद कर देता है हॉस्पिटल का साइट, आपका जो वेबसाइट है वो रैंक होने के जगह डाउन, वो डी रैंक होना चालू हो जाता है। रीजन इज गूगल को क्या गलत सिग्नल जा रहा है, इस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा नहीं है। जब भी एक चीज देखिए कि आप जब भी किसी का वेबसाइट ऑन करते हैं, आप उसको थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे, एटलीस्ट 1-2 मिनट अगर आप उसमें स्पेंड करेंगे, गूगल को क्या सिग्नल नहीं मिलता है, यस दिस वेबसाइट इज रिलेवेंट। जिस क्वेरी को यूजर ने इंसर्ट करा है मेरे सर्च बार में, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेवेंट है, यूजर्स कैन अंडरस्टैंड कि इस वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, उनको समझ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बहुत ऐसे एकदम अपडेट्स आया है। पहले गूगल का फोकस था कि भर भर के कंटेंट दो अपने वेबसाइट में, अभी ऐसा है कि रिलेवेंट कंटेंट दो। अगर यूजर को कंटेंट ही रिलेवेंट नहीं लग रहा है तो वो आपका रैंकिंग घटाने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद एसईओ करना बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक वेबसाइट आज मिलता है फ्रीलांसिंग के लिए, या फिर क्लाइंट की तरफ से कोई भी वेबसाइट आता है, आप ऑन करोगे और उसमें ब्लॉग्स पोस्ट करने लग जाओगे, या फिर आप ऑन करोगे और सिर्फ कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ती है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप जब बिल्ड करते हो कि इस वेबसाइट को स्पेसिफिक किस तरीके के कीवर्ड्स के लिए हमको रैंक करना है, या फिर स्पेसिफिक कौन से पेजेस को कौन से शहरों में रैंक करना है, ये सब पॉसिबल होता है एसईओ की वजह से। हाँ, एक ड्रॉबैक नहीं बोलूंगी, बट एक फैक्टर ये है कि एड्स के कंपैरिजन में एसईओ की विजिबिलिटी को थोड़ा टाइम लगता है, बट एड्स में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, हर दिन के पैसे देने पड़ रहे हैं। एसईओ में आप ऑर्गेनिकली जब रैंक करने लग जाते हो, वो बहुत टाइम तक के चलता है। एक पेज जब रैंक होने लग जाता है, वो 6 महीने, 7 महीने, कभी-कभी सालों साल तक के वो उसी कीवर्ड्स पे रैंक होने लगता है, ठीक है। इस वजह से आपको एसईओ पे फोकस करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को, खुद का वेबसाइट हो, क्लाइंट्स का वेबसाइट हो, आप एजेंसी में काम कर रहे हो, जो भी वेबसाइट्स आपको मिलते हैं, ठीक। जैसे ही आपका वेबसाइट प्रॉपर कीवर्ड्स के लिए रैंक होना लगता है, जब यूजर आपको ढूंढ रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पर रैंक होने लग जाता है। एक तो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट होता है, क्योंकि लोग वेबसाइट बंद नहीं कर रहे, लोग आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इधर उधर क्लिक्स कर रहे हैं, ब्लॉग सेक्शन में जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जा रहे हैं, प्रॉपरली वो आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक बढ़ रहा है आपके वेबसाइट का, लीड्स जनरेट हो रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके वेबसाइट में, मुझे आपका सर्विस चाहिए, तो हम लीड्स जनरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे कॉन्वर्सेशन जो है, कन्वर्जन जो होता है वो बूस्ट होते हैं कि एक लीड्स आया, बट वो हमारे से हमारा सर्विस हो या प्रोडक्ट हो वो बाय करेगा या नहीं करेगा। हम 2 चीजों के लिए वेबसाइट बनाते हैं, या तो हम कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, या फिर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों में से सेल तो होना चाहिए ना, और सेल कब होगा, जब लोग आप पे ट्रस्ट करें। किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जब आपका वेबसाइट रैंक होने लग जाता है, इट मीन्स क्या, कि आपने उतना एफर्ट दिया है। कोई फ्रॉड वेबसाइट को रैंक करने में एफर्ट डालेगा क्या कभी भी? नहीं करता ना कोई इतना। एसईओ में बहुत मेहनत लगती है, कोई नहीं लगाता इतना मेहनत। तो अगर आपका वेबसाइट रैंक हो रहा है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, इट मीन्स क्या, आपने एसईओ में मेहनत की है, आप जेन्युइन बिजनेस हो, राइट। उसके बाद लोगों का भरोसा बढ़ता है, वो ट्रस्ट करते हैं। हाँ, वो देखेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज लेवल कैसी है, क्या उनको फ्रीलांसर चाहिए, क्या उनको कोई एक्सपर्ट चाहिए, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई एम्प्लॉय चाहिए, किस तरीके का सर्विस चाहिए, वो आपकी एक्सपर्टीज देखेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। देन दे विल इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने पेजेस वगैरह बना दिया, बट ये बैकएंड में काम कैसे चलता है, क्योंकि हमारे लिए क्या हो रहा है, हम गूगल पे जाके सर्च क्या कर रहे हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन, हमने ये सर्च करा, वहां पे रैंकिंग हो रही है। कभी आपने ऐसा थॉट दिया
कि यही वाला पर्टिकुलर वेबसाइट पहले पोजीशन पे क्यों आ रहा है, ये वाला वेबसाइट सेकंड पोजीशन पे क्यों आ रहा है। मैं गारंटी से बोलती हूँ आप लोग पेज 2 के आगे कभी गए नहीं होंगे, कभी जाके देखिएगा आपको वहां पे भी सेकंड थर्ड फोर्थ पेजेस पे भी बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस मिलेंगे। तब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि इनमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत इन डेप्थ है। क्या रीजन है कि ये फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रहे, क्योंकि रैंक तो करना चाहिए लोगों के नजरों में, ऐसे बिजनेसेस भी आने चाहिए बहुत जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो सर्च इंजन अभी कैसे काम करता है हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज पब्लिशिंग द वेबसाइट। व्हाट वी हैव टू डू इज हम वर्डप्रेस ओपन करेंगे, वी विल पब्लिश द वेबसाइट, पेज क्रिएट करेंगे हम लोग, राइट। पेज क्रिएट कैसे करना है विल सी इट टुडे। उसके बाद वंस वी आर पब्लिशिंग द वेबसाइट उसको सबमिट करना पड़ता है। वंस वी सबमिट द वेबसाइट, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, दोज आर टाइनी सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम स्पाइडर, क्रॉलर्स इन तरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पेज की क्रॉलिंग होती है। व्हाट हैपेंस इन क्रॉलिंग इज, ये जो छोटे छोटे स्पाइडर्स है, दे विल स्कैन योर वेबसाइट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू हैव पोस्टेड, ठीक है, किस टाइप का कंटेंट हमने पोस्ट करा है। दे विल स्टडी अच्छे से पूरा कि आपने क्या लिखा है, कौन से वर्ड को आपने बहुत बार रिपीट करा है, जिस वर्ड को यू आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, राइट, द वर्ड दैट यू आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, इट विल अंडरस्टैंड, अच्छा इस पर्टिकुलर पेज को इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए रैंक करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का आप कैसे समझ सकते हैं, ऑनलाइन जो सर्वर्स होते हैं उनमें डेटाबेस होता है, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, वहां पे आपके वेबसाइट के सारे पेजेस स्टोर होते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। कंसिडर योर नोटबुक एज अ वेबसाइट, नोटबुक में काफी सारे पेजेस है, राइट। तो हर पेज एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक होगा, ठीक है। हम भी एक पेज में एक टॉपिक लिखते हैं, राइट, तो उस पेज को हम कोई टॉपिक पढ़ना हो तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। सेम वैसा ही होता है डिजिटली, आपका वेबसाइट इज अ नोटबुक जिसमें बहुत सारे पेजेस है, हर पेज अलग अलग शब्दों के लिए, अलग अलग कीवर्ड्स के लिए रैंक होगा। जैसे ही हम इसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं इंडेक्सिंग में कि ये वाला पर्टिकुलर पेज इस वाले पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक होगा, ऐसे हमको स्टोर करना है। इसको हम अगर विजुअली जानना चाहे कि रैंकिंग कैसी होती है इन इंडेक्सिंग, दिस इज योर डेटाबेस, राइट। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। अब दिस इज द पेज जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक होगा। हमारा टेलीफोन डायरेक्टरी जैसा रहता है, इंसान का नाम, इन उसके सामने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एकदम वैसा ही ये सब स्टोर होता है हमारे सर्वर पे। इंडेक्स हो गए हमारे साइट्स, हमारा काम डन है। इंडेक्सिंग के बाद होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक यूजर ने इंसर्ट करा है सर्च क्वेरी। ना सर्च क्वेरी इज एग्जैक्टली योर कीवर्ड, जो इंसान सर्च करता है भाई तो हमारा कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड से मैच करते हुए कितने पेजेस है इंडेक्सिंग वाले डेटाबेस में। इफ वी आर सर्चिंग बेस्ट स्पा इन Mumbai, if individuals are searching best spa in Mumbai, it will go to those databases, it will search all these spas located in Mumbai, ऐसे फिल्टर लगता है, ठीक है। सबसे पहले स्पा वाले सारे वेबसाइट, पूरे जितने भी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है ग्लोबली जितने भी है सारे एक्यूमुलेट होते हैं। उसके बाद मुंबई वाले स्पेसिफिकली एक्यूमुलेट होते हैं। इस बेसिस पे प्रोसेसिंग होता है कि जितने भी, पहले फिल्टर करो, इतने सारे वेबसाइट्स है, सबसे तो पहले स्पा वाले वेबसाइट्स फिल्टर करो, उसके बाद मुंबई वाले जितने भी स्पास है उनको फिल्टर करो। ये हो गया प्रोसेसिंग। दिस आफ्टर दिस प्रोसेसिंग वी आर रिट्रीविंग द रिजल्ट्स। हम लोगों को इतना सारा काम होने के बाद वी गेट टू सी द रिजल्ट ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर फॉर एवरीवन कि बैकएंड में कैसा चल रहा है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। और सब जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इंडेक्सिंग, आई सी पीपल आर हैविंग कंफ्यूजन विद द इंडेक्सिंग। देखिए क्रॉलिंग अगर आपको समझ गया है
तो क्रॉलिंग में आपको समझ रहा होगा कि हर पेज को स्टडी किया जाता है, ठीक है। वी आर स्टडिंग एवरी पेज एंड वी आर स्टडिंग विच वर्ड इज बीइंग रिपीटेटिवली यूज्ड. The words that we are using repetitively are the words for which we want to rank. जो बार बार वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उन वर्ड्स के लिए हम रैंक करना चाहते हैं. तो जो रिपीटेटिव वर्ड्स है वो अपना कीवर्ड हो जाता है, ठीक है. तो वो डेटाबेस जो इंडेक्सिंग रहता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेटाबेसेस रहते हैं, ठीक है. डेटाबेस में आपका जो पेज है उसका लिंक तो रहेगा. मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया है, फिलहाल के लिए हम ऐसे रख देते हैं कि वेबसाइट नेम .com, ठीक है. स्लैश आपने एक पेज क्रिएट किया है चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है. ये आपने जो पेज है, यू हैव क्रिएटेड दिस पेज. ये वाला जो पेज है ये स्टोर होगा आपके इंडेक्सिंग के टाइम पे. इस पेज में ऑब्वियस सी बात है आपने चॉकलेट केक इस शब्द का यूज बहुत बार किया होगा. तो लोग क्रॉलिंग के टाइम पे क्या पता चल जाता है कि इस पेज पे रिपीटेटिवली चॉकलेट केक इस वर्ड को बार बार यूज किया गया है. अब जाके गूगल पे कोई भी कीवर्ड्स को जब सर्च करेगा, कैसे कीवर्ड्स हो सकता है, चॉकलेट केक हो सकता है, चॉकलेट केक रेसिपी हो सकता है, चॉकलेट केक रेसिपी इन हिंदी, चॉकलेट केक रेसिपी इन इंग्लिश, ठीक है, इजी चॉकलेट केक रेसिपी. हम यही सारी चीजें तो सर्च करते हैं गूगल में जाके. जब भी इन कीवर्ड्स का यूज किया जाएगा प्रोसेसिंग में, ये देखा जाएगा कि इंडेक्सिंग के टाइम पे इस कीवर्ड को इस पेज के साथ जोड़ के स्टोर किया गया है. तो लोग जब भी सर्च करते हैं इंडेक्सिंग में ये हेल्पफुल होता है कि पेज तो है, ऑफ कोर्स हमारा पेज जो है वो तो स्टोर होगा ही, बट पेज के साथ साथ कौन सा कीवर्ड है वो सिग्नल भी हमको क्रॉलर्स को भेजना पड़ेगा. जो शॉर्ट कोड्स होते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं, जो क्रॉलर्स होते हैं, उनको ये सिग्नल भेजना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड है. तो ये कीवर्ड क्या रहता है, जब आप पेज बनाओगे ना उस पेज में बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है. अभी क्लियर हुआ आई होप. Hello, ma'am. Are you able to hear me? जी अमित बताए. Yeah. So how many times can a keyword repeat in a content? Like for 2 to example. 3%. 2 to That's all. 3% will be the correct count. ठीक है, Okay, पढ़ेंगे okay, हम लोग. okay, okay, We'll study this. okay. It is all included So- in this presentation. Okay. What if more than 2 to 3 words have come? Like for example, so we some content is like that. There may be more usage of the keyword. Like maybe It is not allowed now. पहले ऐसा होता था. Okay. Earlier people used to Okay. do that. So that terminology was known as keyword stuffing. That we should not. Okay. Okay. ठीक Okay. Okay. Earlier Google So- allowed. जब SEO का जो rules and regulation when it was not updated, people Right. used to stuff keyword like anything, right? वो लोग एक consider a blog of 1,000 words. In that 1,000 words, they used to repeat the words 100 or 150 times, sometimes more than that. So this phenomena Okay. is called keyword stuffing, and that is not allowed. हमने भी नहीं करना Okay. चाहिए, ठीक है? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Next. Now we'll study how many types of SEO are there. First is on-page SEO. On-page SEO की जब हम बात करते हैं, it is all the activities that we perform while creating the page. हम एक वेबसाइट में एक पेज बना रहे हैं. पेज बनाते टाइम हम जितने एक्टिविटीज करेंगे, हम एक्टिविटीज भी देखेंगे इन फर्दर स्लाइड. तो जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उन एक्टिविटीज को मिला के ऑन पेज एसईओ का नाम दिया जाता है, ठीक है. कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं, सिर्फ पेज पे देना नहीं होता है, पेज पे कुछ कुछ सेक्शन में उन कीवर्ड्स को देना होता है, ठीक है. तो इसको कहा जाता है ऑन पेज एसईओ. ऑन पेज एसईओ के बाद आता है ऑफ पेज एसईओ. ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, आपका वेबसाइट एक बार बन गया, पूरा वेबसाइट की बात नहीं चल रहा है यहाँ पे, वेबसाइट का एक जो पेज है वो प्रॉपरली बन गया, उस पेज का जो लिंक है, इस लिंक को हम लेके जाते हैं बाकी साइट्स में, वहां पे प्रमोट करते हैं, ठीक है. कि ये वाला हमारा वेबसाइट है, विजिट करो. मान लो फेसबुक में गया और हमने पोस्ट करा कि दिस इज आवर वेबसाइट, प्लीज डू विजिट. टेक्निकली इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कैसे.
So this is called as off-page SEO, promoting the links of your website after it is completely published in a well structured way. ठीक है, उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में देखा जाता है कि आपका जो पेज है वो प्रॉपरली लोड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सही स्पीड है या नहीं, क्रॉलिंग हो रही है कि नहीं। क्रॉलिंग कैसी होगी, आपको सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, वो सही से हो रहा है कि नहीं, आपने अपने वेबसाइट का जो साइट मैप है वो अच्छे से क्रिएट किया है। बहुत सारे टेक्निकल छोटे छोटे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ये आ जाता है टेक्निकल एसईओ में। क्या आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, क्योंकि हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं हम खुद लैपटॉप से डेवलप करते हैं और हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि लैपटॉप में अच्छा दिखना चाहिए, जबकि मोर देन 75% ऑफ योर टारगेट ऑडियंस इज यूजिंग मोबाइल फोन्स टू चेक आउट योर वेबसाइट। जरा बताइए कि अभी क्लासेस कितने लोग ऑनलाइन फोन से कर रहे हैं, हैंड्स रेज करें कि हाँ मैं फोन से यूज कर अपना ये क्लास अटेंड कर रहा हूँ। We are having 77 students right now here, and let's see how many students are attending this from their phones. 11 students so far. बाकी सभी लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं। How many students are attending this session from their phones? Mobile phones. That's nice count actually. Laptop, phone. I can see many laptops. I can see many phones. This is nice. Awesome, awesome. Done. चलिए, दैट्स नाइस। आप लोग हैंड्स लोअर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फोन से भी इतने सारे लोग अभी सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं। तो नॉर्मल जब हमको ब्राउज करना होता है, जब हम कोई सीरियस काम नहीं कर रहे हैं, हमको चीजें सर्च करनी है, तो कितने लोग लैपटॉप का यूज कर सकते हैं एंड कितने लोग फोन्स का यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे फोन हो लैपटॉप हो, हमको रैंक तो अपना वेबसाइट करना ही है। तो फोन हो लैपटॉप हो, हमको कीवर्ड्स का यूज करना है हमारे पेजेस पे, राइट। तो अब हम देखेंगे कि ये कीवर्ड क्या है, ठीक है। कीवर्ड एक ऐसा टर्म है, ऐसा शब्द है जिसको हम गूगल में सर्च करते हैं। आप गूगल में जाइए, कुछ भी सर्च करें, आप एक सेंटेंस लिखे या 2 वर्ड्स लिखे, जो भी आप लिख रहे हो ना, उस पूरे स्ट्रिंग को, उस पूरे टेक्स्ट को कीवर्ड कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, या फिर हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, तीनों भी आपके कीवर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कीवर्ड यानी एक शब्द होता है, अ कीवर्ड कैन हैव मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जब भी आप कीवर्ड का जिक्र करते हो, व्हेनेवर यू आर यूजिंग द वर्ड कीवर्ड, कई कंट्रीज में या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसको सर्च फ्रेज कहा जाता है, सर्च क्वेरी कहा जाता है, कीवर्ड फ्रेज कहा जाता है, सिंपल क्वेरी फ्रेज कहा जाता है, ऐसे मल्टीपल नामों से जाना जाता है। तो जब आप उस वर्ड को सुन रहे हो, उस वर्ड को सुनते बराबर हमको क्या समझ आ रहा है कि जो गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का जिक्र हो रहा है, ठीक है। whenever you are using this kind of words, you will understand that yes, we are talking, if we are talking about search query, search phrase, so this phrase means that we are talking about keyword, okay। but globally सबको पता है that keywords means the thing that we are searching on search engines, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप छोटे वर्ड्स यूज करो, बड़े वर्ड्स यूज करो, सभी कीवर्ड्स है, उसी बेसिस पे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। अगर आपके कीवर्ड में 2 या 3 वर्ड्स हो, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का अगर यूज हो तो दिस कीवर्ड इज कॉल्ड एज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। डिफरेंस जानना क्यों जरूरी है हम देखेंगे अभी, ठीक। नेक्स्ट आता है मीडियम टेल कीवर्ड्स।
मीडियम टेल कीवर्ड्स में 3 से 4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ऐसे 3-4 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम। और थर्ड टाइप इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये इस कीवर्ड पे पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे मराठी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेट, ऐसा पूरा स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ऐसे जो टर्म्स होते हैं इनका यूज किया जाता है। तो अभी हमने जो ये 3 टाइप पढ़े, ये हमारे लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रीजन इज, हम जब भी गूगल पे सर्च करते हैं आज के डेट में, द 2024 पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इज दैट हम लोग पूरा स्टेटमेंट टाइप करते हैं, ठीक है। पहले लोग क्या सर्च करते थे? फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट, ऐसा। अभी लोग क्या सर्च करते हैं? बेस्ट एंड चीप फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ये पूरा सेंटेंस लिखने बैठ जाते हैं। इसका और अच्छा रीजन क्या है? क्योंकि हमको भी टाइप नहीं करना पड़ता। मोबाइल निकालो, सीरी को बोलो, एलेक्सा को बोलो, गूगल असिस्टेंट को बोलो, खुद वॉइस सर्च कर लो, ठीक है। इस वजह से लॉन्ग कीवर्ड्स का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एंड सिंस मैंने कहा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पहले लोग सर्च करते थे, तो पहले जितने भी वेबसाइट्स थे वो सभी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर रैंक हो चुके और वो अच्छे पोजीशन पे रैंक कर रहे, अच्छा ट्रैफिक आ रहा। तो चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है कि वो डी रैंक होंगे, ठीक है, डी रैंक होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। तो इस वजह से अगर आप लोगों को इस सेशन के बाद कोई काम मिलता है फ्रीलांसिंग का, या फिर अगर आप खुद के वेबसाइट में काम करने वाले हो, फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करो पेज क्रिएशन में, ब्लॉग क्रिएशन में, जो भी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहोगे उनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही डालेंगे हम लोग, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हमारा वेबसाइट का जो पेज है वो रैंक करना स्टार्ट करेगा। अभी हम देखेंगे कीवर्ड को रिसर्च कैसे करते हैं, उसका एक डेमो। अनु बताइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ लॉन्ग जी, टेल कीवर्ड्स का जो पेज में यूज होता है, वही मतलब अपन आइडियली आइडियली क्या होता है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड ज्यादा यूज करते हैं और मीडियम टेल यूज, बट अभी का ट्रेंड, करंट ट्रेंड ये है क्या कि लॉन्ग टेल ही कीवर्ड यूज हो रहे हैं पेज में? आप जब अभी आप खुद अपना बिहेवियर बताइए कि आपने मुझे जो इतना सारा क्वेश्चन पूछा, दिस इज ऑल्सो कीवर्ड देखा जाए तो, क्योंकि इमेजिन आपने मुझे पूछने के बजाय गूगल को पूछा, तो आप इतना ही टाइप कर रहे थे, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कीवर्ड टू यूज करेंटली, इज इट लॉन्ग टेल कीवर्ड और इज इट शॉर्ट टेल कीवर्ड, हम इतना ही टाइप करते। तो पूरा जो सर्च क्वेरी है यही लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, करेक्ट। तो इस वजह से, और गूगल का जो ये होता है क्रॉलिंग वाला जो स्टेप होता है, उसमें भी पूरे जो कीवर्ड्स है लॉन्ग टेल कीवर्ड, उसको पूरा क्रॉल किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट टेल डेफिनेटली होंगे, ऐसा नहीं कि अगर आप अभी शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करोगे तो वो रैंक नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट हमको स्टार्ट लॉन्ग टेल से करना। शॉर्ट टेल जब लोग टाइप करेंगे, धीरे धीरे आपके पेज की रैंकिंग बढ़ते जाएगी। पेज की रैंकिंग कैसे बढ़ती है? ऐसा नहीं हो कि मैंने आज पेज पब्लिश कर दिया कल से वो रैंक होगा, इट विल टेक ग्रेजुअली टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए एक पेज रैंक होता है, ठीक है। बट इस प्रोसेस को, ये जो हम एंटायर बात कर रहे हैं ना, ये सारा प्रोसेस, इसको एटलीस्ट 6 से 7 महीने लगते हैं। पेज ओके। क्रिएट तो हम एक दिन में कर सकते हैं, बट उसको रैंक होने में एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं। कभी कभी अगर आप देखो, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे फोकस कर लोगे, जैसे आप एक छोटे से कीवर्ड पे 2 से 3 वर्ड्स के किसी भी कीवर्ड पे आपका जो वेबसाइट है रैंक करने लग जाओगे, उसको बहुत टाइम लगेगा, मैम ठीक है। उसको मैम इसमें जो मतलब जो कीवर्ड है अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसमें शॉर्ट टेल भी आता है, मीडियम टेल भी आता है, फिर उसके बाद में वो लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है। हाँ हाँ, वो हो जाता है। करेक्ट। मतलब That is तो मैम दैट इसका जो चांसेस है मैम रैंक करने का वो ज्यादा है ना फिर, जो अगर हम चांसेस लॉन्ग ज्यादा टेल है, की। इसलिए लॉन्ग टेल को हाँ। हमको यूज करना है। दैट इज एग्जैक्टली, करेक्ट, तो दैट वही इज है। करेक्ट। एंड गूगल का जो ये है क्रॉलिंग सिस्टम है, वही इसके हिसाब से ही वर्किंग करता है, राइट? आपका क्वेश्चन नहीं समझा, गूगल का जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो ज्यादातर यही जो क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग है, वही बेस पे काम करता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में
सब कुछ हाँ। सर्च करके वो फाइंड आउट करता हूँ। आई Correct, गॉट इट, आई गॉट इट, correct. आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। Thank you, Anup. Yeah. Thank you, Anup. Thank you, Siddharth. मैम हेलो मैम। Yes, Yunus. हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करके, लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर चूज करते हैं वो गूगल के रेलिवेंट होता है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर यूज करें। और हाई वॉल्यूम लो कीवर्ड डिफिकल्टी चूज करें तो एक नया वेबसाइट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एक नया वेबसाइट का कोई डीएपीए नहीं होता है। तो डीएपी हाँ, इसलिए मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड अगर चूज करेंगे तो उसमें हाई वॉल्यूम होगा लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगा, उसमें रैंक नहीं, रैंक आप चांस बहुत कम है। बहुत कॉम्प्लेक्स वे में चले गए। डीएपीए ये सब बहुत बाद के स्टेज में आता है, अभी हम नहीं, सिंपल पेज क्रिएशन में है। तो आप जब नए वेबसाइट पे काम कर रहे हो या फिर मान लो आप बहुत अच्छे वाले वेबसाइट पे भी काम कर रहे हो, कीवर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। या क्योंकि डीए हाई डीए वाले जो वेबसाइट्स होते हैं वो ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं, तो आप कोई सा भी ब्लॉग डाल दो वहां पे, वो तो डेफिनेटली रैंक करेगा ही करेगा, वो हो जाता है। बट फॉर फ्रेश वेबसाइट्स जब आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, उनका डीए क्या रहता है, 0 1 इतना ही रहता है। तो वहां पे या- डीएपीए वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी ये सब मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपको कंटेंट मैटर करता है, व्हाट यू आर पोस्टिंग एंड क्या लोग उसको सर्च कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर यूज करे तो स्पेसिफाई करता है गूगल के लिए, मतलब हम लोगों का चांस ज्यादा होगा रैंक करने के लिए कि नहीं। करेक्ट करेक्ट, या यस मैम एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। हेलो। यस अनु। यस मैम, जब अपन पेज क्रिएट करते हैं तो पेज का जो यूआरएल है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही में ही देना चाहिए ना अपन। कीवर्ड Ideally? होना चाहिए वो आपका, हाँ जो हाँ, पेज मतलब कीवर्ड कीवर्ड। हम पढ़ेंगे अभी फर्दर स्लाइड्स में, पढ़ेंगे हम लोग, ओके पढ़ेंगे, हम ओके। कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। क्योंकि इस बैच में मिक्स स्टूडेंट्स है, जो पहली बार ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुन रहे हैं, उनके लिए कीवर्ड शब्द ही उन्होंने पहली बार सुना है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनको ये पता है कॉन्सेप्ट, बस डिटेल में पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं हम लोग, फर्दर स्लाइड्स में आ ही रहा है, मैं आ रही हूँ आपके पॉइंट पे आ रही हूँ। ठीक है, तो जो मैं फ्री टूल की बात कर रही थी, दिस इज दैट फ्री टूल जो गूगल कीवर्ड प्लानर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कैसे जाता है, हम ads.google.com पे जाओगे, आप फ्री साइन अप करोगे आपकी खुद के जीमेल आईडी से। ठीक है, जैसे ही आप करते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। कोई जो फर्स्ट टाइम ही यूज करेंगे वहां पे आपको प्रोफाइल सेटअप करने बोलेगा, आप स्किप कर देना। ठीक है, बस आप कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करिए इसको। ठीक, यहाँ पे आप जाइए टूल्स पे। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाले सेक्शन पे आपको दिखेगा देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड टूल्स। Go to that tools and click on planning. There is a section for keyword planner. Click on that. ठीक है, after this there are two options कि आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करना है कि आपको सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट देखना है। सर्च वॉल्यूम तो बहुत बात की बात आ जाती है, हमको पहले देखना है कि कीवर्ड्स बता दे। ठीक है, वी विल गो टू फाइंड न्यू कीवर्ड्स यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कौन सा कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग्स, ठीक है, एसईओ के ऊपर जिन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं हमको वो ब्लॉग्स पढ़ना है, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग लिखते हैं यहाँ पे। दिस इज एक वन कीवर्ड जो हमको पता होना चाहिए। आप अगर एक पेज बना रहे हो ना, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या टाइप कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो वहां पे। ठीक है, देन विल क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉग्स इस कीवर्ड पे गूगल पे 38 कीवर्ड आइडियाज अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आपको इस कीवर्ड प्लानर के हेल्प से आपको 38 आइडियाज मिले। आप कोई सा भी और टूल यूज कर लो, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, कीवर्ड टूल्स है, कीवर्ड फाइंडर है, Ahrefs है, उबर सजेस्ट है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, वो बहुत सारी जगहों पे सर्च करके बताएंगे, बट गूगल का कैसा है, लोग गूगल पे आके क्या सर्च कर रहे हैं उस बेसिस पे वो बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन दिखाई देगा फॉर डाउनलोडिंग। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आया है ना एक्सेल, इट इज नॉट इजिली रीडेबल। ठीक है, हमको बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट डाउनलोड इट। ठीक, फिर हम इस शीट को स्टडी करते हैं। शीट को कैसे स्टडी करना है वो एक बार देखेंगे।
ठीक है, हो गया अपना शीट डाउनलोड, इसको भी अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है, ठीक है, बट द मेन डिटेल्स आर दिस कीवर्ड सेक्शन, ठीक है, दिस एवरेज मंथली सर्च, ठीक है, दिस 3 ईयर चेंज एंड ईयर ओवर ईयर चेंज एंड कंपटीशन कैसा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेल्स है, जो इंपॉर्टेंट रोज है, हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। Guys, just give me 1 second. I'll be back in 1 minute. Yeah, just give me 1 second. Yeah, sorry for the disturbance. There was a lot of background noise coming up. Yeah, so we have highlighted the important rows, important columns that is going to be useful for keyword research. अब यहाँ से हमको क्या क्या पता चलता है, देखिए एक एक करके कीवर्ड हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कीवर्ड, इस कीवर्ड को एवरेज मंथली सर्चेस मतलब एक महीने में कितने बार सर्च कर रहे हैं कोई, ठीक है, इस कीवर्ड को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ब्लॉक को महीने में लाइक इन 30 डेज पीरियड इसको सिर्फ 50 बार लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे एवरेज काउंट है, एग्जैक्ट काउंट नहीं है, यहाँ पे वर्ड मेंशन भी है एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं। देन देयर इज 3 मंथ्स चेंज, लाइक लास्ट 3 महीने में इस कीवर्ड को सर्च करने का जो स्टाइल है वो कितना चेंज हुआ है। -90 यानी सर्च करने का जो स्टाइल है, सर्चिंग पैटर्न है गूगल में, वो कम हुआ है, लोग इतने फ्रीक्वेंटली उसको सर्च नहीं कर रहे हैं। देन देयर इज ईयर ऑन ईयर चेंज, एक साल में इसका सर्चिंग पैटर्न कैसा है। अभी देखिए कोई जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं, लाइक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसको 12 महीनों में लोग कब सर्च करेंगे। देन देयर आर सीजनल कीवर्ड्स, ठीक है, लाइक अगर आपको क्रिसमस गिफ्ट चाहिए, अगर आपको रक्षाबंधन गिफ्ट चाहिए, अगर आपको ईद में देने वाले गिफ्ट चाहिए, तो ये जो कीवर्ड्स है दीज आर सीजनल। तो इन सीजनल कीवर्ड्स में आपको ईयर ऑन ईयर चेंज या फिर 3 मंथ चेंज दिखाई देता है, ठीक है। या फिर जो एवरग्रीन है ना, उनमें वो सारा 0% या फिर +90 -90 ऐसा ही फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, ठीक है। तो दिस कॉलम इज अबाउट दैट। अगर माइनस है तो सर्चिंग पैटर्न में डिक्लिनेशन हुआ है, लोग इतना ज्यादा सर्च नहीं कर रहे। 0% है मतलब कांस्टेंट है, आप यूज कर सकते हो, सेफ कीवर्ड है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई ऐसा प्रेडिक्टेशन नहीं लगा पा रहे हैं कि एक साल में कितना चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपटीशन। कंपटीशन अगर लो है, मीनिंग बहुत कम वेबसाइट्स है, बहुत कम वेब पेजेस है जो इन कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कम पेजेस है जो इस पर्टिकुलर पेज पे रैंक करना चाहती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। अगर हाई कंपटीशन है, अगर आप सर्च करें, हम लोग सर्च करते चलिए, यहाँ पे हाई कंपटीशन कीवर्ड्स है ही नहीं, चलो अच्छा है, हम मीडियम कंपटीशन देखते हैं। इसमें भी मीडियम कंपटीशन नहीं है, मोस्टली अननोन कॉम्पिटिशन है या फिर लो कंपटीशन है। व्हाट विल डू इज, हम लोग एक और कीवर्ड लेते हैं, इन दैट केस हम लोग देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कितने लोग सर्च करते हैं, ठीक है। लेट्स सी गेट रिजल्ट्स पे जाके 752 कीवर्ड आइडियाज आ गए अभी हमारे इसमें, क्योंकि ब्लॉग्स लोग ज्यादा सर्च नहीं कर रहे। इसको अब हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। रिपोर्ट प्रिपेयर हो रहा है यहाँ से, और इसको आप अभी ऑनलाइन ही देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को कंपटीशन पे फोकस करना है, इस वाले कॉलम पे, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले तो मीडियम कंपटीशन कैसा है। ठीक है, ये एक हमको मिल गया। कौन सा वाला कीवर्ड है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर माय वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, हो गए 5 वर्ड से ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके के कीवर्ड्स मीडियम कंपटीशन में है, मतलब ये लोग में था, लोग धीरे धीरे इस पे रैंक करना स्टार्ट कर रहे हैं, लोग अभी इस पे फोकस कर रहे हैं, पहले लोग इतना फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, और अभी हाई कंपटीशन वाले देखिए कैसे कीवर्ड्स होते हैं। ये देखिए एक हाई कंपटीशन आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, और देखिए कितने हैं, 3 कीवर्ड्स है ऐसा दिखाया जा रहा है। ओके, दिस इज द वन। ठीक, तो जो हाई कंपटीशन में चल रहा है उस कीवर्ड से थोड़ा हम दूर रहते हैं। गूगल एड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हाई कंपटीशन वाले लोग पैसे देने पड़ते हैं, बट दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। विल स्टिक ऑन एसईओ। एसईओ अगर आपको करना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लो कंपटीशन कीवर्ड्स के साथ। लो कंपटीशन कीवर्ड जैसे सिलेक्ट करें, हर कीवर्ड पे रिसर्च करें कि गूगल में किस तरीके के पेजेस रैंक हो रहे। फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं एंड लेट्स गो ऑन गूगल एंड सी कि किस तरीके के पेजेस रैंक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने सारे रिजल्ट्स है। यहाँ पे इसने क्या बताया हमको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल के लिए कितने हैं, ये यहाँ पे था। एक कीवर्ड मेरे से डिलीट हुआ है गलती से। यहाँ पे देखिए एवरेज मंथली सर्चेस कितने दिखा रहा है, 500, और कंपटीशन लो दिखा रहा है। लो में भी देखिए यहाँ पे कितने वेबसाइट्स है, कितने वेब पेजेस है। ये एक ही वेब पेज के मल्टीपल एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस यहाँ पे शो होते हैं, इसलिए इतना ज्यादा रैंकिंग दिखा रहा है। ठीक है, बट हमको क्या दिख रहा है, 7,88,000 पेजेस है, सॉरी 7,88,00,000 पेजेस है यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करना चाहती। ठीक है, कंपटीशन भले ही लो दिखा है बट इस कीवर्ड पे इतने सारे पेजेस है जो फर्स्ट पेज पे रैंक करना चाहती। ठीक है, और ये जितने भी ये जो वेबसाइट्स रैंक हो रहे हैं ना, सेमरश हो गया है, सर्च इंजन जनरल हो गया है, बैकलिंक हो गया, ये सारे टूल्स होते हैं जो रैंक हो रहे हैं यहाँ। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हो कोई सा भी वेबसाइट कि कैसे हमको रैंक करना है। ठीक है, दिस वाज अबाउट कीवर्ड रिसर्च। आप लोग भी सेशन के बाद एक बार ट्राई करके देखिए खुद से, क्योंकि ये इजी है सर्च करना, बट एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखो तो आपको समझ आएगा कि और क्या क्या हम कर सकते हैं ऐसे फ्री टूल्स के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ओवर द टाइम जो कीवर्ड हम बात कर रहे थे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स, इनका जो यूसेज है वो ओवर द टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे लोगों ने यूज करना बढ़ा है। जब 1990s का टाइम चल रहा था ना, तब लोगों को कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया था। पहले क्या कर रहे थे लोग, माइंडलेसली कुछ भी ब्लॉग्स लिख रहे थे, कुछ भी मतलब जो उनके दिल में आया, जो उनको बात करना था, वो थॉट्स शेयर करते थे। 1990 से लेके 2000 का जो टाइम था। ठीक है, तो इस टाइमिंग पे इंटरनेट का यूसेज धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत महंगा था उस टाइम पे, अगर आप किसी को पता हो तो उस टाइम पे इंटरनेट का जो खर्चा है वो भी बहुत महंगा था, हर घर में इजिली एक्सेसिबल भी नहीं हुआ करता था। तो तब कीवर्ड स्टफिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि एक पेज में एक 2 से 3% का रेशियो होना चाहिए, इतना ही कीवर्ड होना चाहिए यहाँ पे, कीवर्ड टू और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बहुत ज्यादा इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। देन आफ्टर दैट फ्रॉम 2000 टू 2010 जो सर्च इंटेंट है, लाइक व्हाट यूजर इज सर्चिंग फॉर, रैंक ओनली दोज वेबसाइट्स। लाइक if we are searching for digital marketing agency, only the agency based websites will rank. If we are searching for digital marketing course, then only courses based pages will rank. ऐसा नहीं we are using digital marketing, क्योंकि दोनों जो कीवर्ड है digital marketing agency and digital marketing course, both are having digital marketing as a keyword. तो ऐसा नहीं रैंडम कोई सा भी पेज उठा के वो रैंक कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सर्च इंटेंट क्या है यूजर का,
और जो वेबसाइट आप रैंक कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द सर्विस पेज, होम पेज, वो और कैसे कैसे पेजेस वहां पे रैंक कर रहा है। दिस वाज दैट। उसके बाद वॉइस सर्च का ट्रेंड बढ़ा, स्मार्टफोन्स का ट्रेंड बढ़ा है 2010 के बाद से। तो अभी तक वॉइस सर्च बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। एआई वाला जो है, एआई का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। पीपल आर बिकमिंग स्मार्टर कि उनको क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है। माइंडलेस सर्चिंग बहुत कम होता है अभी। दे नो व्हाट टू सर्च, हाउ टू सर्च। ओके, अभी फ्यूचर स्कोप क्या है? फ्यूचर रहेगा कि आप यूजर को कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो। कीवर्ड्स यस, कंटेंट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वेबसाइट कितना डायनामिक है, वेबसाइट डिजाइनिंग पे भी पूरा फोकस रहेगा। तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो चीज वो ढूंढ रहा था एग्जैक्ट उसी टाइम पे, तो सबसे पहले आपका पेज रैंक होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे यू विल विन 50-60% ऑफ दैट ट्रस्ट। ठीक है, बाकी का गेम आपके वेबसाइट ने कर देना है, आपके वेबसाइट का डिजाइन ने कर देना है, आप कैसे कंटेंट पोस्ट करे उसने कर देना है। ठीक है, आफ्टर दिस जो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक ब्लॉग लिख रहे हो। ठीक है, ब्लॉग का रिकमेंडेड लेंथ होना चाहिए 750 to 1000 वर्ड्स का। ठीक है, एक डिसेंट जो ब्लॉग होते हैं उसका लेंथ इतना होना तो चाहिए। उसके बाद उसमें हमने क्या टारगेट करना है, एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स तो हो। ठीक है, जैसे अगर आप टारगेट कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के सिनोनिम्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाता है, इंटरनेट मार्केटिंग हो जाता है, ऑनलाइन सर्चिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिनोनिम्स है डिजिटल मार्केटिंग के, इन कीवर्ड्स को ऐसे 4-5 रख दो। मैं ऐसा नहीं कि 5 लिखा है तो 5 ही करना है। ट्राई एटलीस्ट 4 to 5 keywords, try to have them inside that block। ठीक है, हर कीवर्ड ने ना अभी 5 बार रिपीट होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये पर्टिकुलर वर्ड 5 बार तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बैलेंस जब आप बना लेते हो, हर जो कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है वो एटलीस्ट 2%, मैक्सिमम 3% होनी चाहिए। इससे ज्यादा आप अगर बढ़ा दोगे तो वो 1990s के टाइम का जो सिचुएशन चल रहा था वैसा हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफ करने लग जाओगे। ठीक है, तो कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आपका पेज रैंक नहीं होगा, इमीडिएट हो सकता है, 1-2 महीने तक वो रैंक दिखाएगा, बट जैसे ही गूगल को पता चल जाता है वो पेनल्टी लगा देता है। ठीक है, तो इसको ब्लैक हैट एसईओ भी बोला जाता है। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल्स ब्रेक करोगे, गूगल पेनल्टी लगाएगा, आपका वेबसाइट डी रैंक तो होगा, बट आप उसको बाद में फिर से कभी रैंक नहीं करा पाओगे। आपका वेबसाइट अगर एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाता है गूगल से कि इस वेबसाइट में बहुत ज्यादा एआई वाला कंटेंट है, बहुत ज्यादा ओवर स्टफ्ड कीवर्ड्स वाला कंटेंट है, वो फिर आपका वेबसाइट कभी रैंक नहीं कराएगा। ठीक है, हेलो मैम। हेलो जी जी बताइए। मैं कल परसों सर्च कर रहा था गूगल पे, मतलब कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, वो 1 से 2% दिख रहा है। हाँ, तो और 1 हम से 2 लोग इज ऑल्सो नाइस। और हम 3% लोगों को के ज्यादा लिए क्रॉस मत करिए, हम लोगों 3 के से लिए ज्यादा क्रॉस नहीं। कीवर्ड स्टॉपिंग ना करके एलएसआई कीवर्ड और सिमेंटिक कीवर्ड ऐड करें। हाँ 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 बिल्कुल, वो सारे जो एलएसआई कीवर्ड आप बोल रहे हो, सिमेंटिक कीवर्ड्स बोलते हो, वो कीवर्ड्स के सिनोनिम्स में ही कंसिडर किया जाता है। ये जो 5 कीवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, उनमें यही मैम कीवर्ड्स है। आप बोले, लेकिन वो मतलब उसका ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बोले, इसलिए मैं बोला। नहीं, क्योंकि हमारे बैच में मैंने पहले भी बताया कि बहुत से वो है जिनको एसईओ ऑलरेडी पता है, एंड देन अगेन स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये टर्म्स ही नहीं पता है। इसलिए मैंने पहले ही एनालिसिस किया कि क्लास में सिर्फ 11-12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसईओ को पढ़ा तो भी है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने एसईओ का नाम भी नहीं सुना पहले। तो ओके उनके मैम। लिए मैं इतना ज्यादा टेक्निकल रखूंगी वर्कशॉप, उनको नहीं समझ आएगा। राइट, तो कंसेप्ट सभी के क्लियर होने चाहिए ना। ये सब जो टर्म्स है वो धीरे धीरे जब एसईओ इंसान सीखने लग जाता है तब तो उनको समझ आ ही जाता ओके मैम, ओके, थैंक यू। है। वेलकम। मैम हेलो। हेलो, हाँ मैम हेलो। yes Devika, yes I can see you, yeah, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। no worries, please ask।
मैम मुझे बस एक चीज जाननी है, जो आप कीवर्ड्स और फ्रीक्वेंसी और भी जो आप बताए हो, आप जैसे एसईओ में, जैसे मुझे पता है, जैसे आपका काम ये होता है कि आपका गूगल पे जब भी कोई किसी टॉपिक पे सर्च करे तो आपका रैंक 1 पोजीशन होनी चाहिए, राइट? करेक्ट करेक्ट। मतलब ये कैसे, मतलब अगर एज ए किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जैसे स्पोर्ट्स में भी होता है, मीडिया का होता है बहुत सारे, तो ये कैसे रैंक, कैसे नंबर 1 पे मतलब कैसे लाएंगे हम? उसका कैसे देखिए, मतलब बनता देख है? रहे हैं हम लोग अभी, देख रहे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे अभी। अच्छा ठीक अच्छा। है, लाइक आप ऐसा नहीं होगा कि आपने वो पेज बना दिया और वो रैंक करेगा, थोड़ा सा एसईओ करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए। अभी हम लोगों ने देखा कि कीवर्ड्स कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कितने बार रिपीट करना है, कैसा क्या करना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि रखना कहाँ पे। समझ तो गया आपने को कि कैसे क्या करना है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ स्टफ करें, इस कीवर्ड्स को प्लेस कहाँ पे करें। ठीक है, नाउ वी आर मैम गोइंग टू स्टडी। आई हैव a query. यूनुस, कैन आई जस्ट मैम कंप्लीट दिस वन? मैम मुझे ये जानना था कि कीवर्ड के अंदर ये बिना मेंशन करे किसी भी कंट्री के लिए, कंट्री बिना मेंशन करे मैं कोई कंट्री के लिए मतलब कैसे रैंक करवा सकता हूँ? मेंशन करना पड़ता है। लाइक इफ यू वांट टू रैंक इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव टू मेंशन द कीवर्ड ऑस्ट्रेलिया, right? You ओके have मैम, to ओके send the ओके signals. You have to send the signals to Google कि यार I want to rank this page for Australian clients, for the people of Australia. If people are searching for in Australia, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ में पढ़ेंगे आप कि जो ऑस्ट्रेलियन साइट्स है वहां पे आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं रिलेवेंट साइट्स पे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस है इसी है या नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ। फिर से रिपीट करें कोई पर्टिकुलर। ओके, थैंक यू। देन देयर इज कीवर्ड प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन विल बी द टाइटल ऑफ द पेज। ठीक है, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, जो आपको ब्लू कलर का टेक्स्ट दिखाई देता है, दैट इज द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। ठीक है, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर टाइटल आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल के जस्ट नीचे आपको ब्लैक फॉन्ट में कुछ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, 2-3 लाइन्स के। ठीक है, दैट इज द मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पेज। यहाँ पे हमको कुछ कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। फिर हम जैसे पेज को क्लिक करते हैं, एक्चुअल वेब पेज ओपन होता है। ये तो हमको गूगल में दिख रहे थे छोटे छोटे स्निपेट्स। अभी हमको पेज ओपन करने के बाद पेज का हेडिंग दिखता है। ठीक है, आफ्टर दैट पेज का जो बॉडी कंटेंट होता है वो हमको दिखाई देगा। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं। इसके बाद होता है पेज यूआरएल। जैसे ही हम पेज को पब्लिश करेंगे, वो लिंक जनरेट करता है। तो वो जो लिंक जनरेट करेगा, उस लिंक पे हमारा कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग उस पर्टिकुलर पेज में कुछ इमेजेस यूज करने वाले। तो जो इमेज है उसके जो ऑल टैग होते हैं, वहां पे हमको कीवर्ड ऐड करना है। ये कैसे करते हैं ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आफ्टर दैट पेज में कुछ इंटरनल लिंक्स होती है। ठीक है, जो लिंक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, 2 तरीके के होते हैं। इंटरनल लिंक मतलब क्लिक करने पे हमारा ही वेबसाइट ओपन हो, और एक्सटर्नल लिंक होता है मतलब क्लिक करने के बाद दूसरा ही कोई वेबसाइट ओपन। ठीक है, तो वो हाइपर लिंक पे हम लोग क्रिएट करेंगे, कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, एंड देन देयर इज पेज का जो टैग्स ऑप्शन। ठीक है, जो पेज टैग्स ऑप्शन होता है, टैग्स में भी हमारे कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कीवर्ड प्लेसमेंट। एक बार हम विजुअली देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाई देता है हमको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, दिस सेक्शन इज योर टाइटल सेक्शन। ठीक है, दिस इज योर टाइटल सेक्शन। ये जो ब्लैक कलर का आपको इतना सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आप जैसे क्लिक करते हो, पेज ओपन करिए, उसके बाद दिस इज योर हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में रहेगा दिस इज द बॉडी, दिस आर द इमेजेस यूज्ड। ठीक है, ये कुछ कुछ इमेजेस यूज किए गए। यहाँ पे पूरा रहेगा कीवर्ड। ठीक है, ये रहता है अपना यूआरएल, यूआरएल में अपना कीवर्ड रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको अच्छे से प्लेस करनी चाहिए। डन, थैंक यू बंटी। अभी हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। हम देखेंगे अभी योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज कैसे करते हैं इन वर्डप्रेस, और हम लोग देखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। होप यू गाइस आर रेडी फॉर इट। यस मैम। यस मैम। चलिए, हम लोग चलते हैं अभी
हमारे वर्डप्रेस में, ठीक है। दिस इज द वर्डप्रेस इंटरफेस। या वर्डप्रेस में हम लोग आज क्रिएट करेंगे एक पेज, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट। पेज जो होता है, यहाँ पे आप जो आपके डिटेल्स होते हैं वो शेयर करते हैं, लाइक हु आर यू, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आर यू प्रोवाइडिंग, वेयर आर यू लोकेटेड, हु आर योर टीम मेंबर्स, व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोग पेजेस में मेंशन करते हैं। मैम अब ये Whereas विजुअल post- स्टार्टिंग से क्लिक करेंगे, जैसे आपने स्टार्ट से भी विजुअल का क्लिक किया ना, वहां से आप करेंगे? Deepika, I Starting- can't hear you clearly. आपने विजुअल जैसे स्टार्ट किया ना कि मतलब ये वाला जो बोर्ड डैशबोर्ड ओपन किया है ना, इसको स्टार्टिंग से आप क्लियर करेंगे? ये डैशबोर्ड ही है वर्डप्रेस का। आई कैन शो यू द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स नो। दिस इज द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ओके। ठीक। आप डायरेक्ट किस कीवर्ड पे क्लिक किया आपने, ये मैं जानना चाह रही ये कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं, दिस इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड। हूँ। ओके। वर्डप्रेस इज द सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू बाय द डोमेन एंड होस्टिंग फॉर दैट। फिर सी पैनल पे आपको जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है, देन यू गेट एक्सेस फॉर दिस, ठीक है। मैम मुझे एक चीज जाननी है कि अगर कोई क्लाइंट का मैं काम कर रहा हूँ तो हाँ। उसके तरफ से क्या क्या मुझे चाहिए होगा, मतलब उसका वेबसाइट का होस्टिंग पासवर्ड ये सब वगैरह क्या चाहिए नहीं, होगा? आपको सिर्फ वेबसाइट का लॉगिन चाहिए रहेगा फॉर ऑन पेजेस से। होस्टिंग वगैरह अगर आप अपने तरफ से कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट स्पीड, तब आपको लगेगा होस्टिंग का। ठीक ओके है। मैम, ओके, थैंक यू। Now let's just stick to what our topic is. ये सब एडवांस टॉपिक्स है जो आप पूछ रहे हो, बैच में वैसे स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है। यू कैन आस्क एडवांस क्वेश्चंस लेटर ऑन, ठीक। नहीं मैम, मैं जस्ट मुझे जानना था, डाउट था इसलिए पूछ लिया वैसे। श्योर। अभी हम जाएंगे पेजेस एंड पोस्ट में। बोथ आर द पेजेस ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, ब्लॉग्स पोस्ट करो या फिर पेजेस पोस्ट करो, ये आपकी ही वेबसाइट में शो करेगा। ब्लॉग लिख रहे हैं हम लोग, हमारी वेबसाइट में लिख रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं किसी और के वेबसाइट में जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको क्रिएट करना हो, पेज क्रिएट करना हो, यहाँ पे मेनली डिजाइनिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है। टेक्स्ट वाला पार्ट जो रहेगा वो ब्लॉग पोस्ट पे रहेगा। गो टू द पोस्ट सेक्शन, ठीक है, देन क्लिक ऑन एड न्यू पोस्ट, ठीक है। जैसे ही आप एड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा ब्लॉग लिखने का, ठीक है। ये एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है, राइट। और आपको इंस्टॉल करना पड़ता है प्लगइन्स फ्रॉम दिस प्लगइन्स सेक्शन। आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन दिखेगा, एड न्यू प्लगइन जाएंगे आप लोग, और जो योस्ट एसईओ है, दिस इज द स्पेलिंग फॉर इट, YOAST, योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करना पड़ता है। अभी देखिए एसईओ एंड रीडेबिलिटी, ये सब 0 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई कंटेंट ही नहीं है, राइट, कोई कंटेंट नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा जो आपका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे दिखाई देता है। कोई भी कंटेंट अभी नहीं है, दिस इज लिटरली ब्लैंक कंटेंट। सो व्हाट we'll do is we are going to add the title. Now I do have a content already available with me क्योंकि content writing takes another 3-4 hours, right? So I do have a content available. पहले हम content को study करते हैं, ठीक है। My content is for this experiment is why should you hire a professional digital marketing firm? यहाँ पे मुझे टारगेट करना है this as a keyword. My keyword will be professional digital marketing firm. My intention to rank this blog for this keyword is, intention देखो, क्वेश्चन क्या है कि आपने प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म को क्यों हायर करना चाहिए, दिस इज माय इंटेंशन। तो ये क्वेश्चन कौन सर्च कर सकता है? बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी जानना स्टार्ट करे हैं, उनको अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही वो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अप्रोच करेंगे, दे विल बी कंफ्यूज कि फ्रीलांसर को हायर करे, इन हाउस किसी मार्केटर को हायर करे, कि काम ही आउटसोर्स कर दे, किसी एजेंसी को ही हम काम दे देते हैं, हम अपने काम पे फोकस करें। मल्टीपल टाइप ऑफ ऑडियंस रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑडियंस है, ये अपना काम आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन हाउस अगर आप डिजिटल मार्केटर रखोगे, एक डिजिटल मार्केटर का डे टू डे टास्क बहुत सारा होता है, ठीक है। देखने को वो सारे छोटे छोटे टास्क वो 3-4 घंटे में खत्म कर देगा, इन हाउस रखने का कोई पॉइंट नहीं होता है। बट अगर आप किसी एजेंसी को दे दोगे, वो प्रॉपरली अपने अंदर फुल टाइम डिजिटल मार्केटर्स रख के आपका काम करवा सकते हैं, ठीक है। इट इज मेकिंग सेंस नाउ। अभी हमको इस
पर्टिकुलर ब्लॉग को उन ऑडियंस तक के पहुंचाना है जो इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म को काम दूं तो कैसे दूं, क्यों दूं, देना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं। वेरियस ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग इनसाइड हिज माइंड, ठीक है। दिस इज माय टाइटल, ठीक है। हम इसको करते हैं कॉपी यहां से और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं, हमारा जो है दिस पार्ट, यहाँ पे हमने जो पेस्ट किया ये है हेडिंग, दिस इज नॉट टाइटल। टाइटल हम नीचे जाके योस्ट एसईओ में करेंगे। ये जो है पेज का हेडिंग है। क्लिक करने के बाद जो सेक्शन दिखेगा वो ये वाला सेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडी में, हम देखेंगे कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म क्या एक बार भी रिपीट किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉग में टोटल 500 वर्ड्स तो है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने बार इन्होंने रिपीट किया है। फाइंड करते हैं, पेस्ट करते हैं, वी कैन सी 7 टाइम्स हमारा जो कीवर्ड है वो रिपीट हो रहा है, तो दिस नंबर इज गुड इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्म है, फर्म्स है, तो इट इज वैलिड इनफ। इसके बाद हमको देखना है कि प्रोफेशनल के जगह हम अगर एक्सपर्ट लगा दें, ठीक है, क्या एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग फर्म के ऊपर कोई कीवर्ड है? नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कुछ जगहों में, जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये वाला सेक्शन, businesses gain access to these resources without additional investment or training by hiring a professional firm, इसको हम करते हैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग फर्म, ठीक है। ये हो गया, हमने एडिट किया। आपके पास जो कंटेंट आता है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में आता है, क्योंकि कंटेंट राइटर लिख रहा होता है, उसको इसका नॉलेज नहीं रहता है कि हमको कीवर्ड कैसे कहाँ पे इंसर्ट करना होता है। इस तरीके से हमने एक सिनोनिम इंसर्ट करा। अब हमने बात किया था ग्रामरली का, तो ग्रामरली इन तरीके के एडिट्स देता है। आपको जाना है गूगल क्रोम में और ये वाला जो एक्सटेंशन है ग्रामरली का, इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इसको एक्सेस दे दीजिए और वो आपके आर्टिकल में जितने भी ग्रामेटिकल एरर्स होगा उनको रेक्टिफाई कर देगा। यहाँ पे देखिए वॉवेल का एरर आ रहा है, इसको इसने ठीक कर दिया। कुछ कुछ वो प्रीमियम मॉडिफिकेशंस बताता है, बट दैट इज अप टू यू। अगर आपको प्रीमियम फीचर लेना है आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो दिस इज वेल गुड इनफ, इतना कुछ खराब ग्रामर नहीं है। एंड आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो पढ़ने वाले को समझना चाहिए। बहुत हाई फाई इंग्लिश में लिखोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखोगे, तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो समझने में ही उसको डिक्शनरी ओपन करना पड़ रहा है, तो यूजर्स नहीं रहते ऐसे टाइप के कंटेंट में, ठीक है। तो ये मैम हो गया क्या अपना। मैम क्या इस चीज को एसईओ कंटेंट राइटिंग बोलते हैं? यस, अगर आप कंटेंट चेक कर रहे हो, कीवर्ड्स चेक कर रहे हो और यहाँ पे आपको ऐसे देखना पड़ रहा है फाइंड करके कि कीवर्ड्स कितने बार है या नहीं है, ठीक है, तो यस, दिस इज कॉल्ड एज एसईओ कंटेंट राइटिंग। दिस इज नॉट सिंपल कंटेंट राइटिंग। ये जिसने लिख के भेजा है दैट इज कंटेंट राइटर, ठीक है। देन ओके मैम, थैंक यू। ठीक, इसके बाद देखिए जो प्रोफेशनल फर्म है, ये दिख रहा है हमको, ये काफी बार यूज किया गया है, ठीक है। ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कितने बार है, 2 बार यूज किया है। प्रोफेशनल फर्म एक बार यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशनल मार्केटिंग फर्म हम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल फर्म तो लॉ वालों का भी होता है, आर्किटेक्ट्स का भी होता है, ठीक है, वेरियस एजेंसीज का होता है। तो हमने स्पेसिफाई तो करें कि हमको किस तरीके से करना है, कैसे लोगों से काम कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोफेशनल मार्केटिंग करा दिया और यहाँ पे प्रोफेशनल के जगह हम लगा देते हैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर्स, सिर्फ इतना रखता है, फर्म हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए के जगह ऑब्वियसली एन लगाना है अपने को, ठीक है। इस तरीके से हमको कंटेंट एडिट करना है, ठीक है। और ग्रामरली तो है ही आपके पास ग्रामर एडिट करने का। तो क्या हमको एसईओ सीखने के लिए, एसईओ पे काम करने के लिए कंटेंट राइटिंग आना चाहिए? आता है तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। नहीं अगर आता है तो यू कैन ऑलवेज हायर अ कंटेंट राइटर जो कंटेंट लिख के देगा, बट आपको कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमको पूरे ब्लॉग में चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि हमने प्रॉपरली हर जगह कीवर्ड लगाया है
या नहीं लगाया है। वंस यू आर फीलिंग कि हाँ इसमें सफिशिएंट कीवर्ड्स है, वी आर गुड टू गो, उसके बाद अपन ने क्या करना है, वी विल सिलेक्ट द बॉडी ऑफ द ब्लॉग। ठीक है, वी विल सिलेक्ट द बॉडी ऑफ द ब्लॉग। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे हम लोग, विल गो टू आवर वर्डप्रेस। ठीक है, और यहाँ पे विल पेस्ट इट। ठीक है, डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेक करना पड़ता है क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कॉपी कर रहे हो, तो ये देखिए स्पेसिंग का कुछ कुछ इशू आ जाता है। दिस इज नॉट अबाउट एसईओ, ये बेसिक सा है, इसमें आपको एसईओ का कुछ नहीं लगता है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि प्रॉपर हेडिंग वगैरह आपने दिया है कि नहीं। ठीक है, सारे हेडिंग्स यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है अच्छे से। ठीक, कुछ कुछ हेडिंग्स में भी आपने कीवर्ड ऐड कर देना है। तो हमारा कीवर्ड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रोफेशनल, यहां से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। हेडिंग में भी आपका कीवर्ड एटलीस्ट एक दो बार तो आना चाहिए, नॉट नेसेसरी हर हेडिंग में आप दे रहे हो, बट एटलीस्ट एक दो हेडिंग में दे देना। ठीक है, इस तरीके से हमने फिलहाल कंटेंट लिखा है। स्टिल वी आर नॉट श्योर कि इज इट प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड या नहीं। हम क्या करेंगे, हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, इसको हम जाके यहाँ पे कर देंगे। रीडेबिलिटी देखिए रेड था पहले, अभी वो ग्रीन हो गया, मतलब लोग पढ़ तो सकते हैं, पर क्या एसईओ सही है हमारा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक, एसईओ में कुछ मिस्टेक्स है। व्हाट आर दोस मिस्टेक्स, एक बार हम चेक करते हैं। कैसे चेक करना है, योस्ट एसईओ देखिए कैसे करना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको एसईओ एनालिसिस दिखेगा। ठीक है, इस एसईओ एनालिसिस पे आप क्लिक करिए। इस एसईओ एनालिसिस में आपको दिखाएगा आपने जो भी पेस्ट किया है उसमें 7 प्रॉब्लम्स है अभी भी, इतना सारा कीवर्ड्स करने के बाद भी। ठीक है, Takshi plugins are like short softwares. So these softwares help you to work easier on WordPress. ठीक है, because installing WordPress is not enough. आप सिर्फ WordPress install करोगे, you can design things. We can use ChatGPT for the content. Sanjana, you can, but AI generated content is not entertained by Google anymore. ठीक है, WordPress is free, but for building professional website, you have to बाय डोमेन एंड होस्टिंग, तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, देन अभी देखो ये एरर्स बता रहा है अपने को कि क्या क्या एरर्स है। अगर आपने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया रहता, आपको ये एरर्स पता नहीं चले रहते। ठीक है, मतलब आपको पता है, स्टिल हमको कुछ चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ती है। क्या क्या एरर बता रहा है, ये बोल रहा है कि नो आउटबाउंड, मतलब एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है, इमेजेस नहीं है, इमेजेस नहीं है तो ऑल्ट टैग भी नहीं है, इंटरनल लिंक्स नहीं है। ठीक है, जो की फ्रेज है, जो हमारा टारगेट कीवर्ड है, वो इंट्रोडक्शन में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन है हमारा, दिस वन, इस वाले पैराग्राफ में हमको यूज करना है। तो लेट्स स्टडी दिस कि यहाँ पे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तो यूज किया है सेकेंड पैराग्राफ में, इट इज देयर प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म, बट इट इज आस्किंग अस टू ऐड दिस इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को कॉपी कट कर देते हैं, फर्स्ट पेज में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक एरर उसने रिजॉल्व कर दिया, 7 के जगह वो हो जाएगा 6। ठीक है, की फ्रेज इन जो स्टार्टिंग में है वो वाला एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अभी देखिए वो आउटबाउंड बोल रहा है, इमेजेस बोल रहा है, इंटरनल बोल रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बोल रहा है, की फ्रेज इन हेडिंग बोल रहा है, और की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। इंप्रूवमेंट बोल रहा है, उसको मिल तो रहा है बट उसको जो आपका टारगेट कीवर्ड है वो टाइटल के स्टार्टिंग में चाहिए, मीनिंग इस टाइटल में हमको मॉडिफिकेशन करना है।
तो इसमें बताइए कैसे कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म उनको चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको हम कट करते हैं। Why professional digital marketing firms are hired by businesses। हो गया। इस तरीके से आपको मीनिंग ना चेंज करते हुए कीवर्ड्स की पोजीशन के साथ थोड़ा ट्विक करना पड़ता है, ठीक है। चेंज कर दिया हमने बट मीनिंग चेंज हुआ नहीं हुआ अपने सेंटेंस का, ठीक है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हुआ। चलिए अभी एसईओ एनालिसिस में देखते हैं और क्या बोल रहा है। अभी ये बोल रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन, लिंक्स, ये सारा कुछ ऐड करो, ठीक है। टाइटल में एरर अभी भी है। आपके की फ्रेज से प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग अपियर इन एसईओ टाइटल, बट सारे वर्ड्स नहीं है। आई थिंक कॉपी पेस्टिंग में कुछ हुआ है। यस, ठीक है। अभी देखिए वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। एक अल्फाबेट के वजह से आपके एरर्स कैसे बढ़ गए थे, ठीक है। अभी हमको लगाने हैं कुछ लिंक्स, ठीक है। आउटबाउंड लिंक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बोल्ड में आपको वर्ड्स दिखाई देंगे जैसे फोर्ब्स है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं हम लोग, सर्च करते हैं, जो फोर्ब्स का वेबसाइट है ना उसका लिंक दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट, तो उसका लिंक हम लोग करेंगे कॉपी। कैसे ऐड करना है हाइपर लिंक, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जिनको नहीं आता है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ऊपर आपको इंसर्ट एंड एडिट लिंक का आइकॉन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें, टेक्स्ट लिंक के लिए बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे पेस्ट करें एंड एंटर करें, ठीक है। एक आउटबाउंड लिंक आ गया अपना, ठीक है। आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस द डेमो, ठीक है। तो अब सारे एक एक करके हम नहीं देखेंगे, जो एक ही वर्ड का है मैंने वो दिखाया आपको। अभी इसको चाहिए इंटरनल लिंक, पेज का है, दिस इज द डोमेन, तो इसी डोमेन का हम कोई एक लिंक ऐड कर देते हैं, इसी लिंक को ऐड कर देते हैं। विल सर्च फॉर अ वर्ड, इस वर्ड पे हम लोग ऐड करते हैं, लिंक ऐड करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी देखिए इंटरनल लिंकिंग का इशू भी हमारा चला गया है। नाउ वी जस्ट नीड टू मॉडिफाई द मेटा डिस्क्रिप्शंस। हेडिंग में एक और बार देना है हमको एंड इमेजेस ऐड करने हैं। तो चलिए हम पहले एक एक करके करते हैं। दिस इज द पार्ट जो कीवर्ड एंटर करने के बाद आना चाहिए। यहाँ पे देखिए यूआरएल आ गया अपना, स्लग मीन्स अपना जो यूआरएल होता है। व्हाई शुड यू हायर अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म, ये ऐसे ही रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड का पोजीशन स्टार्टिंग में चाहिए या एंडिंग में चाहिए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस यूआरएल को हम लोग एज इट इज रखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। टाइटल जो है दिस शुड बी दिस एग्जैक्ट थिंग, इसको कॉपी करेंगे हम लोग, वापस आते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। वी कैन सी द प्रीव्यू हियर, जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देता है। पब्लिश करने के पहले वो कैसे दिखेगा, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। स्टार्टिंग का लाइन हम लोग लेंगे यहाँ से, देयर आर मेनी रीजंस टू हायर अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म। शॉर्ट लिखेंगे, read this blog to understand the importance of digital marketing for। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप जब लिमिट क्रॉस करोगे, नीचे जो आपको ग्रीन वाला बार दिख रहा है ना, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट शुड बी ऑलवेज इन ग्रीन ओनली, ठीक है। अब हमको ऐड करने इमेजेस एंड कीफ्रेज में, बट आप लोग देख सकते हो आपका जो एसईओ का रिएक्शन है वो भी ग्रीन में हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे कैसे हमने करना चाहिए। नाउ विल क्विकली ऐड वन इमेज हियर।
ठीक है, I have that image downloaded on my site. Just a second. Pradeep, rank math and Yoast SEO, these both are fine. ठीक है, these both are fine. Rank math इतना पॉपुलर नहीं है, it is used but इतना पॉपुलर नहीं है. ठीक है, let's load it now. हेलो Yes, Pradeep. मैम, मेरा ये डाउट था कि मैं अभी फिलहाल रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ जी, और मैं उसके बजाय योस्ट एसईओ यूज करना चाहता हूँ, तो जो मैंने 2 ब्लॉग लिखे हुए हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. आप रैंक मैथ को अनइंस्टॉल कर दोगे, योस्ट को इंस्टॉल करोगे, तो योस्ट अपने अकॉर्डिंग से कुछ चेंजेस, कुछ इम्प्रोवाइजेशन बता सकता है. दैट्स इट. एसईओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दीज आर लाइक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स. ओके, ठीक है, हाँ जी. थैंक यू. डन. ये है हमारा इमेज. ओके, आई हैव शॉप. ये मेरा विंडो शेयर नहीं है, राइट? एक second. हम लोग जाएंगे यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे. आई नीड माई इमेज टू बी एडेड हियर. ये वाला जो स्पेस है ना, हमको यहाँ पे अपना इमेज ऐड करना है. व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे ऐड मीडिया का बटन दिख रहा है आपको. विल क्लिक ऑन ऐड मीडिया. ठीक है, विल क्लिक ऑन अपलोड फाइल्स. विल क्लिक ऑन सिलेक्ट फाइल्स. अब यहां से हम लोग ओपन कर देंगे. इमेज अपलोड हो रहा है. ठीक है, जब इमेज अपलोड हो जाएगा तब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑल्ट टेक्स्ट का जो बॉक्स है वो डिसेबल्ड है, इसको एनेबल करना है. बस ये ऑटोमेटिक हो जाता है. ऑल्ट टेक्स्ट जो है, पहले तो इंसर्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से फिक्स कर देते हैं हम लोग ड्रैग करके. ठीक है, एंड देन वी विल कॉपी अवर प्राइमरी कीवर्ड फ्रॉम हियर. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करेंगे, ऑल्ट टेक्स्ट में ऐड कर देंगे. लेट्स क्लिक ऑन दिस इमेज. ठीक है, एडिट करना है हमको इमेज को. ये जो है ऑल्ट टेक्स्ट, या फिर और एल्स विल जस्ट गो टू ऐड मीडिया. ठीक है, ये जो इमेज है यहाँ पे ही हमको ऑल्ट टेक्स्ट रिप्लेस कर देना है. ठीक है, कुछ सेव नहीं करना है. वर्डप्रेस में सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. ठीक है, वंस दिस इज डन, आपका इमेज का एरर भी चला जाएगा. ठीक है, और एक और बार हम इसको कॉपी करके एक और सब हेडिंग में ऐड कर देते हैं. एक्सेस टू एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज बाय प्रोफेशनल. ठीक है, 2 बार हमने सब हेडिंग्स में ऐड कर दिया है. ठीक है, एरर्स रिजॉल्व हो चुके हैं हमारे मोस्टली. अभी इमेज की फ्रेज में है. ठीक है, और टेक्स्ट में वो बोल रहा है सेंटेंस लिखो, बट दैट इज फाइन इनफ. ठीक, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, दिस इज द टैग्स वाला फेज, बस ये बचा है अपना. यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे हमारा जो कीवर्ड है वो. ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग फर्म एक बार ऐड कर देंगे. जितने कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं उतने यहाँ पे. आई सजेस्ट 3 से 5 मैक्स सही रहता है. ठीक है, this is done. Once this is done, we just need to click on publish this page. Once you are publishing this page will become live. ठीक है, SEO readability हमेशा ग्रीन में रहना चाहिए आपका. ठीक है, this page is now published. अभी इसको हम व्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, वंस यू क्लिक ऑन द व्यू पोस्ट, आपको ब्लॉग का जो एक्चुअल URL है वो मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज द ब्लॉग दैट वी क्रिएटेड. आपको लिंक्स दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम
जाएंगे इसको क्रॉलिंग के लिए भेजने के लिए, ठीक है। We just need to click on this URL. We have to go to Google Search Console, ठीक है। यहाँ पे साइट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग पूरे स्टेप्स होते हैं जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। We'll go to URL inspection, ठीक है। हम हमारा जो अभी वाला ब्लॉग है इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अब वो चेक कर रहा है कि क्या गूगल में इंडेक्स है। दिस URL इज नॉट ऑन गूगल, ठीक है। अभी पोस्ट किया है हमने तो ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑन गूगल, तो वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्स, ठीक है। क्या इसको इंडेक्स कर सकते हैं वो चेक करेगा, ठीक है। वंस इट इज डन वो ऑटोमेटिक गूगल को बोल देगा, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड दिस विल बी सेट। Any queries, guys? That's all for today's session. Page creation, on page SEO, ठीक है। ये चला गया। सबमिटिंग रिक्वेस्ट, जो आपका रिक्वेस्ट है वो हो गया। अब गूगल के क्रॉलर अपने मर्जी से आएंगे, आपका साइट स्क्रॉल करेंगे और उसके बेसिस पे आपका जो वेब पेज है आपने अभी पोस्ट करा है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स कीवर्ड पे धीरे धीरे रैंक करना चालू कर देगा, ठीक है। बट दैट्स नॉट ऑल, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन SEO। आपको ये वाला लिंक हर जगह पे जाके प्रमोट करना है। दैट विल कवर इन ऑफ पेजेस, ठीक है। That's all for my side, guys. Let me know if you have any queries. मैम मुझे एक चीज जाननी थी कि मतलब URL कस्टमाइजेशन कैसे करना है। मतलब URL जैसे customization URL Yoast SEO में जो slug वाला पार्ट है आप वहां पे जाके एडिट कर सकते हो, कोई भी। ओके मैम, जी, ओके। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू यूनुस, थैंक यू सो मच। हेलो जी आशुतोष। मैम, मैंने पूरा ये आपका ये वीडियो में पूरा देख नहीं पाया, तो क्या मुझे इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? आप एडमिन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं आशुतोष। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। हेलो मैम। अनूप बता। मैम, हाउ गूगल आइडेंटिफाई द AI कंटेंट? अनूप आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। आई हर्ड AI कंटेंट। गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि आपके वेबसाइट पे AI कंटेंट है? ओके, सो देयर इज एन AI टूल जहां पे आप AI कंटेंट है कि नहीं डिटेक्ट कर सकते हो। सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स, रिपीटेटिव वर्ड्स, AI का एक स्टाइलिंग होता है, ठीक है। बट यू कैन चेक इट ऑन undetectable.ai। यहाँ पे आप अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट करके देख सकते हो कि क्या ये AI डिटेक्टेबल है, ठीक है। चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, किसी से भी आप कर लो, वो AI डिटेक्शन बता ही देता है। तो उसको थोड़ा ह्यूमन टच देना है। थोड़ा ह्यूमन टच यानी कैसे? आप AI के आर्टिकल्स पढ़ना, जब तक आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते ना, आपको वो प्रॉपर आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। तो आपको उसको प्रॉपरली बोलना पड़ता है कि आप इस तरीके के केस स्टडीज ऐड करो, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज समथिंग AI टूल्स कैन नॉट ऐड, ठीक है। तो राइटिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका कंटेंट बहुत रिच बनता है वंस यू स्टार्ट एडिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, चैट जीपीटी को तो आधे से फैक्ट्स एंड फिगर्स पता भी नहीं है, ठीक है। नहीं करना। वेबसाइट कौन सी बोला है मैम आप? AI? हाँ हाँ, AI कंटेंट चेक करने के लिए वेबसाइट कौन सी बोली है आपने अभी? अनडिटेक्टेबल AI। You want अनडिटेक्टेबल to share the link? Just give me a moment. या मैं saved है, I'll just share it. ठीक है। Alright guys, I had a nice time explaining you guys. The undetectable AI tool is in the links. कोई भी मैम एक queries और हो चीज, आप admin के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट Thank एक you चीज so जाननी much. थी। हेलो मैम, हेलो, एक चीज बस, एक Yes. मिनट। मुझे जाननी थी ऐसे सेशन और कितने बार मतलब रोज अभी मिलेगा ना ये सेशन, मतलब जो आज मिला है। आपको एडमिन टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके। That's all from my side guys. आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी जानना हो, आप एडमिन टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you. See you again. Bye हेलो guys. मैम। Happy weekend. हेलो मैम। हेलो मैम।
हेलो मैम, हेलो 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 Do you want another classes? Do you want some more classes? Please message. If you want more classes, master classes, 1 or 2 more, we can organize and arrange for you. Please message in the text box. Thanks for your response. Sir, thanks for your response. Yes, sir. Thanks. We will inform you as soon as possible. We will soon inform you and we'll take it forward from you. Thank you for the joining, guys. The next class, जब भी master class होगी, we will update about the next master class on that program. Your WhatsApp. So thank you so much, guys, for the joining. If we have another workshop, we'll let you know by the WhatsApp group as well. And all the workshop we conduct in future, we'll let you know. मैम थैंक यू सो मच, ऐसे वर्कशॉप अरेंज कीजिए आप, बहुत मतलब Yeah, sure, Anu. इट्स वेरी नॉलेजेबल. Yes, definitely. Thank you so Thank you much. so much. Yeah, bye bye. Bye. Have a nice day. Have a great day, all.